Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with exercise 8.1 of chapter 8 decimals of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have learned about introduction about the decimals. Now in today's lecture we will solve exercise 8.1. So let's start. First of all, we will solve question 2. In question 2, we are said that write the following decimals in the place value table. क्वेश्चन 2 में जो है हमें कुछ डेसिमल्स गिवन है. ओके, इन डेसिमल्स को हमें प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू टेबल, देन आफ्टर वी विल write them according to their place value. Students, here I draw a place value table, okay, according to these numbers. First of all, the minimum place value is up to 100. How? Here ones, tens, only ones tens, here ones, tens, 100. So we will observe this in the given number. So the maximum place value is 100. Okay, now for decimal, here is your point, and after point only one digit, here also one digit, here also one digit, and here is also one digit. So we will write up to tens, okay, in the given table. Now here for first number 19.4, here nines comes at ones place, so I will write 9 in the ones column. Okay, here 1 comes in 100 tens place, so I will write it in tens columns. Okay, now 4 is at tens place. Okay, how we know that? Immediately after the point the number comes at first position, it is denoted as a tens place. So I will write 4 in the tens column. Okay, here you can write here 0 or dash. Okay, now for this, here before point the digit is 0 and it comes at a ones place, so I will write 0 in the ones place column. Okay, now after point the digit 3 comes at a tens place, so I will write 3 in the tens place column. Here you can write dash here. Okay, now in n.6 before point 0 comes at a ones place, so I will write 0 in ones place column. Okay, now for 1 comes at a tens place, so I will write 1 in tens column. Okay, now after point 6 comes at a tens place, so I write it in tens place column. For this number, this is your point. Before point 5 digit comes at ones place, so I write 5 in ones place column. Okay, 0 in tens place column because it comes at a tens place, and 2 comes at a 100 place, so I write it in 100 place column. Now after point the digit 9 comes at a tens place, so I write it in tens place column. So these things you have to remember, and you have to remember one more thing. If the place value of given number increases before point set and after point set, means point, this is your number, this is your point, this place is before point side and this side is after point side. Okay, so we will increase the place value table by writing 1000,
For example, this we will increase one more place before 100. So we will write 1000, 10,000, lakhs, and after point place we will write tens. If the value increases, we will write hundreds, thousands, and 10,000 and so on. Okay, means जैसे कोई नंबर हमें गिवन है और उसमें प्लेस वैल्यू अगर ज्यादा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने बनाया है उस टेबल के इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू से इंक्रीज कर देंगे नंबर के अकॉर्डिंग टू, ओके, और इस तरफ भी वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे, मींस जो प्लेस वैल्यू है वो क्या करेंगे हम लोग इंक्रीज कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग टू हम उन नंबर्स को भी शो करेंगे. नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन 3. इन क्वेश्चन 3 वी आर सेड दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. यहां पर वर्ड्स में फिगर को लिखा हुआ है, ओके, तो उनको हम लोगों को एज ए डेसिमल फिगर में राइट करना है. फॉर क्वेश्चन ए 7 tenths. 7 tenths means you know we will write 7 and tenths means we will write 10 in the diameter of 7. So it will become a fraction, but we have to write it in a decimal. So simply we will write 7 and put a point sign before 7, okay, and put a 0, so it will become in decimal. यहाँ पर 7/10 आया, ओके. अब इसको हम लोग जानते हैं अपॉन में 10 हो, मीन्स हम क्या करते हैं, ऊपर के डिजिट्स को लिखते हैं और बैक साइड से मीन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट लेफ्ट करके हम लोग पॉइंट पुट करते हैं, ओके. तो यहाँ मैंने पॉइंट पुट किया और आगे डिजिट नहीं था तो मैंने 0 इंक्रीज कर दिया, ओके. नाउ for B 2 10 and 9 tenths. Here 2 tenths means 2 multiply by 10 and put a plus sign. If and what is given, so we will put a plus sign. Remember that. Now 9 tenths. 9 tenths means 9 upon 10. So it will become 10 to the 20 and it will become 0.9. हाउ, यहाँ पर 9/10 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर के जो भी डिजिट्स हैं उनको लिखेंगे और अपॉन में 10 है तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से 1 डिजिट लेफ्ट करके एक पॉइंट पुट करेंगे, ओके. तो यहाँ पे पॉइंट पुट किया, भाई 0 इंक्रीज किया, ओके. नाउ यहाँ पे 20 is a whole number and before point 0 is also a whole number, so we will add them 20 and 0. It will become 20. Now we will put 9 as it is, okay. Why? Because in this number there is no decimal number, so we will write 9 as it is, okay. Now this is your answer. Here this is your answer. Write down answer. Now in question C 14.6. Here 14, simply write down 14. Point means you have to put a point sign. Now 6, okay, so write down 6. This will become your answer. Now in question D 102 tenths. So write down 100 as 100 for and put a plus sign. Here 2 ones. 2 ones means write down 2 and multiply it by the place value of ones as 1. So write down 100 again, put a plus sign, 2 1 are 2. Now add them, it will become 102. So it will be your answer. Now 600.6. So write down 600 simply. Here point means write down point sign and write down 6. So it will become your answer. So these things you have to remember. Now we will solve question 4. In question 4 we are said that write each of the following as decimals. यहाँ पर कुछ नंबर्स हमको गिवन हैं, उन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उन्हें हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5/10. सो वी विल राइट 5 and put a decimal sign as a point and
increase 0, so it will become your answer simply. How? यहाँ पर 5.10 है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंपली डिनोमिनेटर में 10 है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऊपर के डिजिट को लिखते हैं और लेफ्ट साइड से 10 है तो ऊपर डिजिट लेफ्ट करते हैं और पॉइंट लगा करके हम लोग 0 इंक्रीज करते हैं अगर नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर होगा 0.5। नाउ फॉर दिस, यहाँ पर इससे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर इसे चेंज करेंगे। अगर 1/10 है तो क्या होगा, 10 है मींस 1 डिजिट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ओनली 1 ही है तो यहाँ पे 1 को लिखा मैंने, पॉइंट पुट किया और यहाँ पे 0 इंक्रीज किया। ओके, नाउ यहाँ पर पॉइंट के बिफोर इसमें ये 0 क्या है, होल नंबर है और ये सारे भी होल नंबर है तो इन सबको मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 260 एंड 5, ये कितना हो जाएगा 265 एंड 0 तो 265, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा 265। नाउ पॉइंट और ये 1 एज इट इज, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, हमें क्या याद रखना है कि पॉइंट के बिफोर जो भी नंबर है वो होल नंबर है और उनको आगे के होल नंबर्स में प्लस कर देना है। ठीक है, जो आता है उसे लिखना है और पॉइंट रख करके जो भी डिजिट है उसे हमें लिखना है। नाउ 88/10, तो सिंपली इसके डिनोमिनेटर में 10 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर के जो नंबर में जो भी डिजिट्स है उसे एज इट इज लिख लेंगे और अपर में 10 है मींस बैक साइड से 1 डिजिट लेफ्ट करेंगे और पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे 88 में बैक साइड में 1 डिजिट मतलब 8 को लेफ्ट करूंगा और यहाँ पे पॉइंट पुट करूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन F, फॉर होल नंबर 2/10 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर को हम अलग से लिखेंगे और एक प्लस साइन पुट करेंगे और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसे हम लोग अलग से लिखेंगे। तो ये जो स्टेप है ये इस क्वेश्चन के जैसा बनना। ओके, अब इसे आगे कैसे सोल्व करना है वो हम इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। यहाँ पर 4 को मैं एज इट इज लिखूंगा और इसे डेसिमल में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2/10 है तो 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा, अपॉन में 10 है तो 1 डिजिट लेफ्ट करूंगा, पॉइंट पुट करूंगा और एक 0 इंक्रीज करूंगा। ओके, एज ए होल नंबर। अब यहाँ पे 4 होल नंबर 0 होल नंबर दोनों का प्लस होगा तो कितना आएगा 4 और पॉइंट एंड 2 एज इट इज लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल वाला मींस आफ्टर पॉइंट वाला कोई डिजिट है ही नहीं तो इसे मैं एज इट इज लिख दूंगा। ओके, नाउ यहाँ पर 3/2, अब डेसिमल पुट करने के लिए क्या होना चाहिए, अपॉन में 10, 100, 1000 ये ऐसे सब नंबर्स होने चाहिए बट यहाँ पे 2 है। ओके, अब यहाँ पर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे 10th प्लेस वैल्यू तक कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, 10 के अंदर 2 का डिवाइड करना है। ओके, तो 10 के अंदर मैं 2 का डिवाइड करूँ तो कितने टाइम्स आएगा, 2 5 या 10। ओके, 0 0 आया नहीं मैंने तो मीन्स हमें क्या करना है, ये जो 5 आया है ओके तो उसके लिए हमको क्या करना है, 3/2 एज इट इज लिखना है और ये जो रिमाइंडर 5 आया है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। नाउ सिंपली अब यहाँ पर इसे हम लोग डेसिमल जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर है 15 इसे मैं एज इट इज लिखूंगा और अपॉन में 10 है मींस इस नंबर में बैक साइड से एक डिजिट में लेफ्ट करूंगा और यहाँ पे पॉइंट पुट करूंगा तो ये डेसिमल में कुछ इस तरह से कन्वर्टेड हो जाएगा ना। यहाँ पर 12/5 है, अब डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ पे 10, 100 और 1000 मींस 10 के मल्टीपल नंबर होने चाहिए तो यहाँ पे ये नहीं है तो सिंपली अगर इसे हम लोग अप टू 10 तक कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये प्रोसेस का यूज करूँगा मींस 10 में मैं इसके डिनोमिनेटर को ना 5 उसका डिवाइड करूँगा यहाँ पे 5 या 10 कंप्लीटली डिविजिबल होगा मींस इस 2 का मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, 12 जा 24 एंड 5 जा 10। नाउ सिंपली अपॉन में 10 है तो नंबर 24 को एज इट इज लिखेंगे और बैक साइड से एक डिजिट लेफ्ट करके यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ध्यान
ध्यान रखना है अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है और उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 गिवन है, ओके, तो हमें क्या करना है, अगर अप टू 10 तक उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो को जो भी डिनोमिनेटर है उसे तो मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 था तो मैंने 5 से डिवाइड किया, ओके। इसी तरह से अगर अप टू हंड्रेड्स मींस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे और सेम प्रोसेस आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इसी तरह से इसमें, ओके। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ फॉर क्वेश्चन जे, यहाँ पर 3 जो है होल नंबर है, इसे हम लोग लिख देंगे। नाउ 3/5, अब 3 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 3/5, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। कैसे, देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था डिनोमिनेटर अगर 5 है तो उसे 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 में 5 का डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में कितना आता है, 2 आता है, ओके। तो उस 2 का जो है हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2 कहाँ से आया, तो उसके लिए मैंने 10 में जो है इस 5 का क्या किया है, डिवाइड किया है, 5 2 जा 10 0 0, ओके। तो इस तरह से हमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 3 प्लस 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6/10 मीन्स 0.6, मीन्स 6 को एज इट इज लिखा और अपॉन में 10 मीन्स बैक साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, ओके। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर है 0 और ये होल नंबर है, दोनों प्लस हुए तो कितना हुआ 3, नाउ 0.6 एज इट इज, तो ये होगा आपका आंसर। नाउ ये सब जो है वो भी कुछ इसी टाइप का है, यहाँ पे 4 होल नंबर उसे हम लोग सेपरेट लिखेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे और 1/2, अब 1/2 है, अपॉन में 10 नहीं है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे ना, 2 5 जा 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, कितना आया 5, तो 5 का जो है हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये 4 एज इट इज, 5 1 जा 5 2 5 जा 10, मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.5। हम अब जानते हैं अपॉन में 10 है तो क्या होता है, पीछे से 1 डिजिट लेफ्ट करके पॉइंट पुट करते हैं, अभी करोगे एडिशन होगा तो ये कितना देगा 4.5, ये होगा आपका आंसर। तो इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है।